Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your mastermind faculty and NORCET batch mentor. And today I'm really happy and I am feeling so proud to announce that today we are here, Miss Aparajita with us who secured All India rank 43. So सबसे पहले very a huge congratulations to Aparajita for securing this rank All India rank 43 and clearing NORCET 6.0 entrance examination. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। So the बहुत ही first question, yes, the first question I really want to ask you is this: कि the moment you got the result and you got to know कि आपका 43 rank आया है, what was your first reaction? तो पहले जब रैंक आया मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आया है। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि मेंस का रिजल्ट आउट है, जल्दी से चेक करो। तो मैंने डाउनलोड किया और देखा। पहले मुझे सीरियल नंबर को ही रैंक, मतलब उसी को ही मैंने रैंक मान लिया। तो मम्मी पास थी तो मैंने बोली कि मम्मी शायद नहीं होगी क्योंकि 1850 ऐसा अब हो रहा है। मम्मी ने बोला ठीक से एक बार देखो। तो मैंने देखा कि रैंक पीछे था और वो 43 था। तो मतलब मैं तो रोने ही लग गई थी। मतलब फिर मम्मी पापा बहन बहुत खुश है वो लोग। मैं भी Absolutely बहुत खुश खुशी हूँ। खुशी की बात ही है that you have cleared NORCET with such a good rank. एंड आई एम श्योर अब यहाँ पे मुझे जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, हम जितने भी स्पेशली जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दे आल्सो नाउ want to know that what all strategy you have you have adapted while preparing for NORCET 6.0, what all subject you have given more importance and how you have done your revision. So this video, I'm sure to all the viewers, those who are watching this video, stay with us till end because here we will be covering all the strategy point which Aparajita used while preparing for NORCET 6.0. उन्होंने किस तरीके से सब्जेक्ट को मैनेज किया, how she has managed the revision part, the practice part, टेस्ट को कहाँ से अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, everything. Right. So this video is especially going to be very beneficial for those who are preparing for 7.0 and 8.0 because every time I keep on saying this to the NORCET aspirant that you have to, हम जितना toppers की strategy को समझते हैं, we get an idea कि हमें whether we are going in the right direction या हमें भी कुछ और ऐसा strategy में कुछ point है which we need to add on. So yes, this is going to be very important session for all of you. So here, Aparijita, I want to know that whether ये जो आपने अभी NORCET attempt किया, whether this is your first attempt. यस मैम, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। Great. Again, I really want to say congratulations again. Because in थैंक यू your मैम। first attempt, you have secured All India rank 43. Itself is a big achievement. And again, you have set, ये होता है ना कि आपने ये आपने ये बता दिया है कि it's not like कि आपको multiple attempt करने पड़ेंगे if your strategy is correct. If you are dedicated, you have this target कि आपको NORCET चाहिए. दिस इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल. आप NORCET 1 अटेम्प्ट में भी इजिली क्रैक कर सकते हो. सो हेयर आई एम श्योर अपरिचिता, जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे नाउ, आफ्टर नोइंग दिस दैट यू हैव सिक्योर्ड 43 रैंक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, they want to know more about your strategy, your preparation part. So let us give them the complete picture कि आपने क्या किस तरीके से प्रिपेयर किया है, and let us start with योर एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आपने किस तरीके से अपनी जो है नर्सिंग को परस्यू किया. तो मैंने अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता से। और 4 ईयर का था और 2023 में ही मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ ज्वाइन किया। मेरी एक सीनियर दीदी थी, उनसे ही मैंने पता चला मुझे कि उन्होंने ऐसे किया था। तो फिर मैंने उसके बाद ही धीरे धीरे जो होता गया इससे ही मैंने पढ़ी, सब कुछ इन मतलब आप लोगों से ही है। when you have passed out from 2023, जब आपने अपना फोर्थ ईयर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने मतलब कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, यू वर डूइंग कोई आप जॉब प्राइवेट कर रहे थे, नहीं also you नहीं are नहीं मैम। preparing for NORCET. यस मैम, पूरा So मतलब मैंने 2020, जॉब नहीं किया।
यस, 2023 से फिर आपने, जब आप अपने फोर्थ ईयर या अपने कॉलेज टाइम पे थे, तो क्या आपका ये जो नॉर्सेट को क्रैक करने का जो गोल था, ये तभी आपने ये फिक्स किया था कि जब मैं फोर्थ ईयर में हूँ अब मुझे पास आउट होने के बाद नॉर्सेट या एम्स में जॉब करना है? नहीं मैम, ऐसा नहीं था मेरा। मतलब मुझे बस नॉर्थ सेट के बारे में पता था, क्योंकि हमारे जो सीनियर दीदी थे उनमें से मतलब दो तीन दीदी ऐसे गए थे वहां पे। पर ओके। हाँ, सिलेक्ट हुए थे। पर मुझे उतना ज्यादा पता नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे कौन से बुक होते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। पास आउट होने के बाद ही मैं सब कुछ पता किया और फिर पढ़ाई स्टार्ट किया। स्टार्ट करी। सो 2023 में आपने इन फ्रॉम विच मंथ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? नवंबर से ही स्टार्ट किया। तो नवंबर से, क्योंकि 2023 में आपने नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड यू हैव गिवन दिस नॉर्सेट 6.0 आपने एग्जामिनेशन दिया है, जो नेक्स्ट हमारा अभी ये हुआ था। तो अब आई रियली अगेन, जितने भी हमारे स्टूडेंट होंगे दे विल गेट मोर क्यूरियस कि नवंबर से अगर आपने आफ्टर पासिंग फ्रॉम द फोर्थ ईयर, जब आपने अपना डिग्री बीएससी का कंप्लीट किया, उसके बाद यू 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 सेट कि आपने अपना ये नॉट सेट वाला एम बनाया कि मुझे से चाहिए, उसके लिए आपने अपना पूरा प्रिपरेशन देखा कि मैं कहाँ से पढ़ सकती हूँ, एंड यू सेड दैट यू हैव सिलेक्टेड नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ। सिंस देन यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम द नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ। तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ आपको अपने सीनियर के थ्रू पता चला। जब आपको नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ पता चला, तो वहां से आपने क्या ऐसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखा कि मैं किस तरीके से अपने सारे डेज को, मंथ को डिवाइड करूंगी, एंड नॉर्सेट का जो अब अगला नॉर्सेट है विच इज 6.0, उसको मुझे क्लियर करना है? तो एक तो गाइडेड स्टडी प्लान था और एक सेल्फ स्टडी प्लान था। और मैं जब ज्वाइन किया तो गाइडेड स्टडी प्लान जो था वो बहुत ही आगे चले गए थे। तो उसी टाइम मेरे आरएम जो थे उन्होंने बताया कि जहाँ से हो वहां से ही स्टार्ट करो, मतलब जैसा गाइडेड स्टडी प्लान हो रहा है तो मैंने उसी को ही फॉलो किया, एकदम उसको ही फॉलो करती गई। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी मॉडिफाई करना पड़ा अपने अकॉर्डिंग, बट बस उसी को ही फॉलो करती गई, जो टेस्ट होता था वो देती थी। ऐसे ही मतलब जो जैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के गाइडेड स्टडी प्लान जिस चलते थे मैंने वैसे ही चलती गई। तो अगर हम बात करें, जैसे जो ऑफ कोर्स नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, दे हैव दिस उनके दो हमेशा स्टडी प्लान रहते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज लुक फॉर द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। कई बार होता है स्टूडेंट जो है गाइडेड स्टडी फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर हेक्टिक वर्किंग शेड्यूल, और कुछ लोग होते हैं जो उनको चाहिए कि डे वाइज उनका जो प्लान मिले। तो यू वर वन ऑफ देम जो जिन्होंने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया एंड गाइडेड स्टडी को फॉलो किया। आपको आपकी जो प्रिपरेशन थी, अगर नवंबर से स्टार्ट हुई, अपरिजिता, आपने कितना टोटल मंथ दिया जिसमें आपने ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किया? पहले तो मैंने जब ज्वाइन किया था एफओएन चल रहा था, शायद एफओएन चल रहा था, तो मैंने पहले उसको किया। अब एकदम से उसको किया। फिर पीडियाट्रिक आया था, फिर पीडियाट्रिक किया, फिर ओबीजीवाई किया। फिर मेडिसिन जब क्लासेस थे तो मेडिसिन भी किया, सर्जरी भी किया। तो ऐसे ऐसे मैं करती गई और जो मेजर सब्जेक्ट्स थे ऐसे मैंने कवर कर लिया। मेंटल हेल्थ मेरा रह गया था, उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ कंप्लीट किया। और जब फास्ट मतलब एमएलबी लाइट क्लासेस आए तो मतलब रिवीजन के लिए मैंने एमएलबी लाइट को पूरा फॉलो किया। और मैं जब क्लासेस आता था, मतलब हर एक क्लास का नोट्स मैं तभी ले लेती थी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स ही था जब मुझे, मतलब एग्जाम के पहले तो उसको ही बस फॉलो किया, अपना जो हैंड रिटन नोट्स था उसको। यहाँ पे मैं नोट से आपने ये जो मेंशन किया है पॉइंट, यही पॉइंट पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अपरिजिता, आप जब नोट्स बनाते थे, जैसे आपने बोला कि जो भी गाइडेड स्टडी प्लान में वीडियो चल रही है तो आप वो वीडियो लेक्चर देखते थे, क्या आप नोट्स देन एंड देयर साइड बाय साइड ही बनाते थे वीडियो के साथ? यस मैम, देन एंड देयर ही मैं बना लेती थी। मतलब जैसे होता है ना, एक सामने टीचर बैठ के पढ़ा रहे तो मैं वैसे ही मैं लेती थी। तो एक और चीज मुझे ये जाननी है कि जब आप डेली रेगुलर जो आप जितने भी सब्जेक्ट आप वॉच कर रहे थे, वीडियो जो लेक्चर देख रहे थे, तो इनको जैसे आपने स्टार्ट किया एफओएन से, पीडियाट्रिक से, एफओएन खत्म होने के बाद आपने उसको दोबारा एमएलबी लाइट में रिवाइज किया या बीच में दोबारा आपने एक और बार जब भी टाइम मिला रिवाइज कर लिया? हाँ, मतलब एफओएन जब हो रहा था मेरा
मैं उसी दिन रात को एक बार जो वीडियो देखती थी, एक बार मैं नोट्स को गो थ्रू करती थी। और जब F1 खत्म हुआ, एक बार मैंने देखा था, मतलब उतना अच्छे से नहीं, पर फिर भी मैंने नोट्स को एक बार गो थ्रू किया था। फिर जब पीडियाट्रिक हुआ, उसके लिए भी मैंने एक बार, मतलब होता है ना, एक बार यस। देख लो, ऐसे करके देख लिया था मैंने। फिर सो जब MLB लाइट आया, उसमें तो फिर से हुआ था। एग्जैक्टली अपरिजिता, यहाँ पे दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, यू नो, आई रियली वांट टू टेल देम, देखो स्टूडेंट्स, here we need to understand that revision is not something कि पहले हम पूरा सब कुछ पढ़ लें उसके बाद स्टार्ट होगा, नो। we need to understand revision is a ongoing process। रिविजन जो है चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आप जब अपनी सारे पूरे नर्सिंग के सब्जेक्ट मेजर माइनर खत्म कर लोगे तब रिविजन स्टार्ट करोगे, नो। हमेशा आपको ये फोकस रहना है कि 3 बारी रिविजन आप करो। एक हमेशा तब रिविजन होता है, आपने जैसे अपरिजिता ने बोला, जो भी उन्होंने सुबह से शाम को जो भी पढ़ा वो एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो उसको एक बार रिवाइज करें। सेकंड रिवीजन होता है जो भी हमने पढ़ लिया, जब भी वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अब मूव कर गए हो, जैसे F1 के बाद आपने पीडियाट्रिक पढ़ना शुरू कर दिया, अब पीडियाट्रिक पढ़ते हुए ही आप F1 के जो नोट्स बनाए होंगे, जो यहाँ पे अपरिजिता ने बहुत ही यू नो ब्यूटीफुली शी हैज मेंशन दिस पॉइंट कि वो नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लिया, सही से पूरा बैठ के दोबारा F1 नहीं पढ़ा। अपरिजिता ने सिर्फ वो जो नोट्स बनाए थे उनके, उनको गो थ्रू किया, जिससे कि टाइम भी कम लगा और एक बार मेमोरी में दोबारा से वो रिकलेक्ट हो गई जो भी आपने पढ़ा। एंड लास्ट रिवीजन जो अपराजिता ने करी वो करी थी MLB लाइट से, जो आपकी मेन रिवीजन प्लान था। एंड अगेन हाँ। दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी विच यहाँ पे अपराजिता ने बच्चों के साथ शेयर करी है। सो आई रिकमेंड एवरीवन, दोज हु आर फोकसिंग फॉर 7.2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डोंट जस्ट स्टार्ट और वेट फॉर योर रिविजन कि एक बार सारा पढ़ लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, नो। ऑलवेज फोकस ऑन साइड बाय साइड रिविजन, राइट। अपरिचिता, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बिकॉज यस जो हमारी कंसेप्चुअल मीडिया होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वी हैव मास्टरमाइंड फैकल्टी जिससे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एट द एंड क्वेश्चन ही वहां पे अटेम्प्ट करना है। सो व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग MCQs? एक तो मैं जो सब्जेक्ट है, टॉपिक असेसमेंट टेस्ट होता था ना, वो पहले एक, बाद Yes. में एक। हाँ, तो वो तो मैं देती थी हर एक मतलब सब्जेक्ट से पहले और बाद में। और वो इंडियन सेट जितना भी हुआ मैंने सारा ही अटेम्प्ट किया था। और मैं टारगेट हाई बुक भी फॉलो करती थी। मतलब वो थोड़ा वो डिजीज पोर्शन का MCQ के लिए ही बस उसको लिया था। और और हाँ, जो सुपर 60 जब आया, फिर मैंने सुपर 60 में मतलब GT जितना था, एक दो छोड़ के मैंने देने की कोशिश की है सभी। और यहाँ पे आई एम श्योर अब जितने बच्चे होंगे उनके मन में दिमाग में एक ही सवाल होगा कि इतने क्वेश्चन हमें डेली करने चाहिए एज अ नर्सिंग एस्पिरेंट हमें, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा जब भी हम स्टूडेंट किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, दे शुड नो अ टारगेट, कि हमें कोई बता दे कि दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली ऑन रेगुलर बेसिस। सो यहाँ पे अगेन अपरिजिता, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो इस किस तरीके से आपने रेगुलरली कितने MCQs आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे? जब पहले स्टार्ट किया था तब तो इतना ज्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे अब पता ही नहीं था मतलब कैसे करूं। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि हर रोज मतलब जो पढ़ रही हूँ उसका अगर MCQ कर लूं तो वो बहुत फायदेमंद होगा। तो मैंने वैसे स्टार्ट किया डेली ऐसे, मतलब जितना हो सकता था 100 क्वेश्चंस, कभी कभी उससे ज्यादा, कभी कभी थोड़ा सा कम, ऐसे ही मतलब 100 का एक टारगेट था, मतलब वो करती गई, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी तक ऐसे। एक और यहाँ पे क्या होता है अपराजिता, क्योंकि आई एम श्योर जितने बच्चे अभी जो हमारे इवन सब्सक्राइबर भी होंगे, जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो NNSAT टाइप के जो टेस्ट होते हैं, तो इसमें कई बार स्टार्टिंग में क्या होता है कि रैंक बहुत अच्छी नहीं आती, एंड देयर वर नंबर ऑफ टाइम के हम फील करते हैं बहुत लो कि हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया है एंड वी यू नो स्कोर्ड वेरी लो इन दैट एग्जामिनेशन, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? मेरा भी, मैं भी बोल रही हूँ, मैं जब फर्स्ट NNSET दिया तो उसका जो लेवल देखी थी मैंने, वो तो मुझे बहुत ही डिप्रेस्ड कर दिया था कि इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया, इतना ज्यादा कैसे करूँ। तो मैंने जो जो गलती होती थी
उसमें मैं मतलब एक बुक था, मेरा डायरी था, उसमें पूरा एकदम लिख लेती थी जो गलती हुई है, और जिसमें जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो मैंने अटेम्प्ट किया पर क्लियर नहीं था कॉन्सेप्ट, उसको भी मैं लिख लेती थी, ताकि अगर मतलब फ्यूचर में वही क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो। तो मैंने ऐसे ऐसे करती गई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एंड वेरी सेट कि आपने किस तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिया, एंड एन सेट हो या कोई भी टेस्ट हो, टेस्ट देने के बाद उसे छोड़ दिया। नो, हम बुक में भी जब भी बुक को बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो बुक को भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 4 से 5 बार उस बुक के एक स्टार्टिंग पेज से एंड पेज तक सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिमिलरली हम जो भी ऐप में आपके नर्सिंग नेक्स्ट स्लाइड में वी हैव नंबर ऑफ टेस्ट, तो जितने भी टेस्ट है उनको मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसे दोबारा आप रिपीट कर सको। एंड यहाँ पे अगेन अपराजिता, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच आई रियली वांट यू शुड टेल टू ऑल आवर सब्सक्राइबर और द स्टूडेंट दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन, इज हाउ यू हैव डिवाइडेड योर डे। आपने पूरा अपने दिन को किस तरीके से, कितने कितने, किसको कंसेप्चुअल वीडियो को कितना टाइम देना है, प्रैक्टिस कितने टाइम करनी है, रिविजन कितने टाइम करनी है, नोट्स टेस्ट कितने टाइम में बनाने, तो किस तरीके से आपने डिवाइड किया था? मैं अगर सुबह से बोलूँ तो मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं नाइट पर्सन हूँ। तो मैं 8 से 9 बजे में ही पढ़ने बैठती थी। तो और सुबह का जो टाइम था, मैं उस टाइम पे जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हो या फिर नोट्स हो, मैं उसको देती थी, क्योंकि मुझे ज्यादा समझ उसी टाइम पे आता था, मतलब होता है ना एक। बिल्कुल। तो वैसे मैं करती थी सुबह का 3-4 घंटा ऐसे। और फिर दोपहर को जो 2 to 5 PM है, उस टाइम पे मैं क्वेश्चंस करती थी ज्यादा। अ, अगर किसी टेस्ट देना हो या फिर बुक से अगर MCQ करूँ तो वैसे करती थी। फिर शाम को एक बार सुबह का जो नोट्स है, एक बार आधे घंटे में एक बार पढ़ लेती थी, ऐसे मतलब जैसे होता था टाइम। फिर से अगर वीडियोस देखना होता था तो शाम के टाइम में फिर से देख लेती थी। और रात को एक ऐसे टेस्ट हो या फिर कुछ अगर रह गया हो, अगर कुछ करना हो, वो फिर से करती थी रात। Great. And you know, I absolutely agree, Aprajita, because काफी time we all are different and there are lot of number of students जो morning person नहीं होते हैं. हाँ Even I myself, if I talk about myself, very morning person you. I love to, study during the night hours. हाँ। थोड़े लॉन्ग स्ट्रेच आवर्स कर ले, सुबह सुबह हम्म। थोड़ा अपना पूरी नींद करे, उसके बाद हाँ विल स्टार्ट योर डे। सो डिपेंड अपॉन, if you are a morning person, then as a student, as an aspirant, you have to start your day early, you have to give हमेशा जिस चीज हम स्टार्ट किससे करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने पूरे डे की स्टार्ट जब आप करते हो, तो यू हैव टू स्टार्ट विद कंसेप्चुअल वीडियो, जैसे यहाँ अपराजिता ने मेंशन किया, क्योंकि उस टाइम पे यू फील फ्रेश। जितने कंसेप्ट हैं जो पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप इजीली ग्रास्प कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो। फिर जैसे जैसे आपका डे जाता जाता है, देन दैट टाइम बाकी का डे है उसको आपको प्रैक्टिस में फोकस करना है, क्योंकि तब आप अपने माइंड को, अपनी क्लिनिकल जजमेंट को यूज कर रहे हो। अगर आप सेकेंड हाफ वाले पोर्शन में ज्यादा वीडियो पे स्ट्रेस करोगे, तो यू विल फील स्लीपी। इसीलिए यहाँ पे जो अपरिजिता ने जो पॉइंट मेंशन किए, वेरी वेल एंड वेरी ब्यूटिफुली और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपरिजिता ने अपने डे को डिवाइड किया था, कि उन्हें नींद भी ना आए और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए, हम प्रोडक्टिवली हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे। वेरी वेल डन अपरिजिता। नाउ हियर जितने ये जो एमएलपी, क्योंकि एमएलपी लाइट हर बार क्या होता है कि नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ दे वांट टू गिव द बेस्ट प्रिपरेशन टू द स्टूडेंट, एंड हर बार की तरह एंड में जब आपका सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, सो रिविजन पार्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा विगरसली आपकी मास्टरमाइंड फैकल्टी की सारी वीडियोस आती हैं, एंड सुपर 60 आता है, तो वो सारी चीजें चलती है। बट उससे पहले क्योंकि नॉर्सेट इज, इट्स ऑल अबाउट सरप्राइज, तो नॉर्सेट ने एक ऐसा सरप्राइज रिलीज किया था थ्रू द नोटिफिकेशन, विच विच वाज लाइक किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अपरिचिता, जब आपको पता चला कि अब नॉर्सेट में एक सेगमेंट सिस्टम आ गया है, जिसमें 5 सेगमेंट होंगे और हर एक सेगमेंट में टाइमलाइन आ जाएगी
कि आपके पास 18 मिनट का टाइम है, यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन, और उसके 18 मिनट के बाद यू कैन नॉट रिव्यू। क्योंकि अभी तक हमें क्या प्रैक्टिस है, एज अ, हमने जितनी बार भी कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया या जितने भी लोगों ने पहले नोट सेट दिया है, कि एक बार 100 क्वेश्चन होने के बाद हम आराम से, टाइम बचता है तो उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, हम अपने माइंड को दोबारा फोकस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सही है नहीं है, उस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं। बट इस मोमेंट में नॉट सेट 6.0 में एम्स ने पूरी ये स्ट्रैटेजी या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को बदल दिया। सो व्हेन यू गॉट टू नो कि अब जब आप देने वाले हो 6.0, उसमें ये चीज एप्लीकेबल हो गई है, तब उस टाइप पे आपने क्या सीखी का थोड़ा माइंड तुम्हें थोड़ा दिया आया कैसे होते और जो है प्रैक्टिस करने। तो व्हाट वाज योर थॉट ऑन, अब मुझे एंड क्या चेंज आपने किया अपनी तो स्ट्रैटेजी में? पहले जब ये नोटिफिकेशन आया तब तो मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कैसे होगा। अभी तक तो पूरा टाइम रहता था 1.5 घंटे में फिर से आके देख सकती हूँ, फिर 18 मिनट कैसे टाइम हो पाएगा। तो मतलब मैं बहुत डर गई थी कैसे होगा। अपने को शांत किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस करती थी अपने मोबाइल में, 18 मिनट का टाइमर दे के ही करती थी। तो 20 क्वेश्चन करना है ऐसे ही करती थी तब से लेकर अभी तक। मतलब मैंने एग्जामिनेशन दिया है तो सब और वैसे ही यही मैंने होना किया। चाहिए, क्योंकि अब जब हमें पता है कि 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, सो हमें उस चीज की हैबिट होनी है, तभी हम एग्जाम में भी टाइम को मैनेज कर पाएंगे। ना एक और जो सबसे बहुत ही वो ना सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का, वो ये रहता है कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, हम नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें। अब जब आपने अपना नोट सेट दिया प्रीलिम्स और मेंस, वहां पे आपकी माइंड में क्या ऐसा पॉइंट था, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर आल्सो वेल अवेयर कि नेगेटिव मार्किंग का पूरा हाँ। ऐसा सिस्टम है कि अच्छा जो भी इजी पेपर होगा उसमें अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग चली गई, आपका सिलेक्शन भी गया, रैंक भी गई। सो आपने किस तरीके से ये क्या पॉइंट फोकस किया कि मेरी नेगेटिव मार्किंग जो है मिनिमम हो जाए? तो जब मैंने प्रीलिम्स दिया उससे पहले तो मैं जितना मेरा नेगेटिव होता था उसको लिख लेती थी, ऐसे करती थी मैं। और जब प्रीलिम्स हुआ तब मेरा बहुत ज्यादा नेगेटिव, प्रीलिम्स में मेरा बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आया था। तो जब मैंने देखा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग आया है तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेंस में मैं जाके जितना 100% मुझे पता है, जिस जिस क्वेश्चन में मुझे हाँ कि यही आंसर होगा, तो मैंने बस उसी को ही करना है। और अगर मुझे देखना है कि मैं दो को एलिमिनेट कर पा रही हूँ तो उसी केस में ही, अगर मुझे मतलब होता है ना एक टॉपिक पड़ा हुआ है, वैसे मैं आपको फॉलो किया था एकदम। आपने जो टेस्ट ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी मतलब बताई थी मैंने उसको फॉलो किया था। और मेंस में जाके मैंने वही फॉलो किया कि मेरा नेगेटिव मार्किंग, मैं मतलब मुझे जो 100% आता है बस वही मैं करूंगी। और अगर रिस्क लेना है तो उसके बाद अगर मतलब मैंने नहीं ही लिया एकदम, ऐसे ही होता है। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो अपरिचिता हर एक सेगमेंट में 20 क्वेश्चन थे, उसमें आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, अगर हम एक एवरेज देखें तो? प्रीलिम्स में प्रीलिम्स प्रीलिम्स में में 17 to 18, 17 हर to 18। हर सेगमेंट में 17-18, मतलब हर सेगमेंट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। इन दोस क्वेश्चन यू फेल्ट लाइक आई एम वेरी डाउटफुल व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपने हर सेगमेंट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? जो पहला सेगमेंट था उसमें मैं 17 किया था, फिर दोनों में 18 किया था, फिर लास्ट में 19 किया था। ग्रेट ग्रेट। बट यही यहाँ पे देखो, दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई रियली वांट टू टेल टू ऑल द स्टूडेंट दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, you need to understand the game of negative marking. If you'll understand, then you know, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता देन you'll be able to secure your rank, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग से बच रहे हो। हमें यहाँ पे जरूरी नहीं है हर जगह तुक्का लगाना है, हर जगह हाँ। गेस वर्क करना है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, स्पेशली इन विच इन विच केस, इन सच क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड हर बार ऐसा होता है नॉट सेट में दो, हर सेगमेंट में
एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाँ बाउंसर की तरह होंगे, जहां पे हाँ। लगेगा वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, right? So this is again very good strategy which Aparajita has used in case of Norset 6.0, and due to this she secured, not only secured but clear with the Norset 6.0 with 43 rank. And again, so proud of you and congratulations. And one more point यहाँ पे, जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी आप पूरा फ्रेम कर रहे थे, जब आपने अपनी पूरी अपना कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिस का पार्ट किया, तो जब हम आपने रिविजन पार्ट स्टार्ट किया, जो आपका रिवीजन था एंड सुपर 60 ग्रैंड टेस्ट थे, तो समवेयर जब आप ये सारे टेस्ट दे रहे थे, क्या ये जितने भी टेस्ट थे जो हम अटेम्प्ट करते हैं, इतने नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, क्या वो टेस्ट और जो एम्स के जो टेस्ट होते हैं, हम उसमें क्या कोई सिमिलैरिटी देख पाते हैं? क्या वो हेल्पफुल होते हैं कहीं ना कहीं? जो देखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन आना इट्स डिफिकल्ट, बट जब हम इतने सारे टेस्ट देते हैं तो उन टेस्ट से हमारी नॉलेज एनहांस होती है। क्या उसके बेसिस पे नॉर्सेट के एग्जाम में जो टेस्ट आते हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं ये बोलूंगी कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ऐसे मतलब किसी भी, अगर आप मतलब एग्जाम देने जाओ एकदम जो पढ़ के गए वो आ जाए, ये तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुझे लगता है। तो वो जो टेस्ट थे उन सब से ही जो नॉलेज गेन किया, उसी को ही नेक्स्ट टेस्ट में मैंने अप्लाई किया, ऐसा ही चलता है। तो वो तो ऑब्वियसली हेल्पफुल था कि जितना सारा टेस्ट दिया वो जाके नॉर्सेट में, मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल लगा। And how do you find the level and quality of these tests, especially the Super 60 जो लास्ट में एक सीरीज निकलती है, जो सबसे ज्यादा विग्रस होती है, जिसमें हाई वॉलेटाइल टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं कि बच्चों की पूरी रिवीजन उस टेस्ट सीरीज से हो जाए? हाँ, वो जो टेस्ट सीरीज था मतलब सुपर 60 का, मैंने मतलब एक दो छोड़ के शायद पूरा ही कंप्लीट किया था। तो वो उसका लेवल बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा वाला लेवल है, वो लेवल अच्छा ही था। और वो जाके नॉर्सेट में हाँ कहीं ना कहीं पे तो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। क्योंकि एक होता है ना, अगर आप रेगुलर एक मतलब हाई लेवल का अगर टेस्ट दे रहे हो, तो जाके आपको अगर आप देखोगे कि हाँ उसका सेम लेवल या फिर उससे कम लेवल में आया है, तो आपको अटेम्प्ट करने में मतलब आसानी होगी। तो मेरे लिए वही मैंने, बहुत अच्छा था मेरे लिए मतलब सब कुछ। Now, here, Aparijita, I want to, ask this question because since you have mentioned your strategy and very beautifully you have, tell this to all the student कि आपने किस तरीके से मैनेज किया। एक जो पॉइंट सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि क्योंकि यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम नवंबर, नवंबर से जो हमारा ये नॉर्थ सेट 6 पॉइंट है, इट्स क्वाइट अ बिग ड्यूरेशन है। आप अपने गोल को जो फोकस कर रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ये आपके थॉट मन में आया होगा कि लेट मी गिव अप एंड क्या पता नोटिफिकेशन ना आए, लेट मी जस्ट सर्च फॉर द जॉब, लेट मी स्टार्ट वर्किंग समवेयर, जहां भी जॉब मिल जाती है। ये जितने भी जो नेगेटिव थॉट आते हैं, स्पेशली जब हम जब हम पूरा टाइम अपना देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये नेगेटिव थॉट से आपने कैसे डील किया? और जब कई कई बार व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू फेल्ट लाइक होपलेस हो जाते हैं, तो ये अप्स एंड डाउन जो आते हैं ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, वो कैसे आपने डील किया? छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा ऐसे। तब मैं मतलब मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा शेयर करती हूँ, तो उनसे मैं बोल देती थी कि मम्मी नहीं हो पा रहा है, टेस्ट में बहुत ऐसे नेगेटिव हो रहा है, नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे डांट लगाते थे कि अब तुम पढ़ने तुमको पढ़ना है ना, तुम पढ़ो, देखना हो जाएगा, ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो आपका मतलब प्रिपरेशन पीरियड है, उसमें जितना ज्यादा हो सकता है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव पीपल और पॉजिटिव चीजें अपने आसपास रखिए। क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चीजें और नेगेटिव पीपल से आप बात करोगे, उतना ज्यादा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैंने यही फॉलो किया, बस अपना मतलब अपने सराउंडिंग में बस मतलब पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव चीजें ही रखना मतलब पसंद किया मैंने। वेरी ब्यूटीफुल। एंड आज मम्मी की जो डांट थी वो काम आ गई, देखो काम ही नहीं आई बिल्कुल। आपको एक सक्सेसफुल
रास्ते पे छोड़ दिया है। इतनी अच्छी आपकी मम्मी की डांट थी। एंड यस, वेरी ब्यूटीफुली सेड कि हम अपने जो एनवायरनमेंट होगा, यू हैव टू, इफ यू नो, यस, के नेगेटिव थॉट आना ये एक ऐसी चीज है जो आएगा ही आएगा, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल आर फोकसिंग एट वन पॉइंट, और वो उसमें थोड़ा भी ड्यूरेशन है, मैराथन है जिसमें आप, रेस है जिसमें आप भाग रहे हो। सो काफी सारे ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं, एंड द ओनली रीजन जिससे हमें अवॉइड करना है कि वी हैव टू स्टे पॉजिटिव थ्रू आउट द जर्नी एंड मेक योर सेल्फ सराउंडेड बाय द पीपल, और मे बी सराउंडेड बाय द वाइब जो पॉजिटिव हो। जितना ज्यादा हम नेगेटिव पे फोकस करेंगे, विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। सो यस, this is something which I really want to share to all the viewers, those who are watching this video, that you have to stay positive no matter what happen. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, we have this thought, let us give up and let us do something else, but that, you know, that is the time जहाँ पे आपको एक छोटा ब्रेक लेना होता है। give yourself break, give yourself time, you know, अपने आप से बात करो। अपना, अगर that, because in case of अपराजिता, she has her mother with her, जो उनको सपोर्ट कर रही थी, तो जो भी है, you know, exhale out your feeling, which is also very important, especially during the preparation as a student. कई बार हमें जो है ये इस तरीके से थॉट आता है कि नहीं, अब नहीं होगा, let us leave everything. No, if you have started this journey, if you have started your preparation, you have a goal, you will complete it and you can complete it. All you have to do is stay positive, remain consistent and believe that you can do it, right? सब कुछ डिपेंड करता है सेल्फ बिलीव पे। तो सबसे पहले खुद पे बिलीव होना चाहिए एंड पॉजिटिव रहना है पूरी जर्नी पे। अब यहाँ पे अपराजिता, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम था, आपका जब एडमिट कार्ड आ गया एंड व्हेन यू रीच टू योर एग्जामिनेशन सेंटर, उस टाइम पे क्या आपने रिवीजन स्टार्ट किया उस टाइम पे? क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। व्हाट इज योर थॉट इन दिस? मतलब एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद? यस, एग्जाम, क्योंकि बच्चे ना इतने स्ट्रेस में होते हैं, एंड लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट हैव आस्क्ड मी, मैम एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, क्या अब हम रिवीजन करें? नहीं मैम, मैंने नहीं किया था। मतलब मैं तो जितना हो सकता है अपने आप को मतलब शांत रखने की कोशिश कर रही थी, खाना खा के अच्छे से, मतलब एक होता है ना ऑल इज वेल, ऐसे करके ही यस, गई थी। उस टाइम क्योंकि पे उस मैंने टाइम और पे कुछ नहीं देखा था। नर्वसनेस इतनी पीक पे होती है कि वी हैव नो आइडिया, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे हाँ। आएंगे। दिस इज ऑल्सो, एंड दिस इज द सेम आंसर विच आई यूज टू, यू नो, आई रिकमेंड एवरीवन, डोंट फोकस ऑन, स्पेशली जिस दिन आप सीबीटी, अपना एम्स का एग्जाम देने, नॉर्सिट का एग्जाम देने जा रहे हो, उस टाइम पे आपको बिल्कुल काम रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा एंशियस हो जाते हैं कि जो हमें याद होता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीजें जो लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स है ये याद रखनी है जो प्रिपेयर कर रहा है। राइट नाउ अगेन, जब आप सीबीटी, जब आपने अपने सीट पे बैठ गए, प्रीलिम्स और मेंस की, प्रीलिम्स की बात करते हैं, द मोमेंट आपका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के क्या रिएक्शन था? तो मैंने क्वेश्चन देखने के पहले 10 मिनट जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो 10 मिनट मैंने मेडिटेशन किया था, मतलब ग्रेट। एकदम शांत होके। और फिर मतलब ऑल इज वेल ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था। और मतलब जब स्टार्ट हुआ एग्जाम तब मैंने सोचा कि हाँ सब आता है, धीरे धीरे करती जाऊं तो कर पाऊंगी। तो मैं वैसे ही करती गई और मतलब क्वेश्चंस ठीक ही लग रहा था मुझे, तो मैं करती गई। You know, very beautifully you have quoted this. This is the spirit that we really want everyone should have while attempting this NORCET or CBT examination, because इतने नर्वस अगर हो जाओगे, इतने एंशियस हो जाओगे, तो कई बार जो याद है वो भी भूल जाएंगे। सो स्टे काम, मेडिटेट करो, ऊपर वाले का नाम लो, एंड देन जो भी क्वेश्चन है बस यही बोलो कि यू नो द कंसेप्ट, थोड़ा सोचो, एंड देन जब आप सीबीटी दे रहे थे, वो जो 20 क्वेश्चन थे, तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया उस टाइम पे? हाँ मतलब
मुझे टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया था, बिकॉज क्योंकि आपने वो पहले ही प्रैक्टिस कर पहले रखा ही है। हाँ, उतना यस। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। और जो अगर जिस क्वेश्चन में हार्ड आ रहा था, तो मैंने उसको उसी में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू करके ही रख दिया था। और फिर बाद में करती गई, आके फिर से देखा कि मतलब फिर से आके पूरा रिवीजन करने का टाइम था मेरा, इतना तो हो अगर गया। मैं ये पूछूं कि 20 क्वेश्चन 18 मिनट में थे, तो आपने वो सारे 20 क्वेश्चन देखने के बाद आपके पास कितना मिनट बचा था, कितना टाइम बचा था रिव्यू के लिए? 3 मिनट्स बच गया था मेरा। तो हर सेगमेंट में कम से कम 3 से 4 मिनट हाँ, यू हैव जिसमें आप रिव्यू कर सकते हैं। ग्रेट। रिव्यू कर। Great, Aparajita, and this is basically possible because you have done a lot of practice of attempting MCQs in that particular duration. So this is important. Students, please make sure that अब हम जितनी भी practice करें, whether you are, कहीं से भी आप practice कर रहे हो, बुक से practice कर रहे हो, टेस्ट ऐप में दे रहे हो, कहीं भी आप दे रहे हो, make sure कि 20 क्वेश्चन 18 मिनट के सेट में ही करना है। इसी से ही अभी स्टार्टिंग से ही डे 1 से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट बिल्ड होगी, और कहीं ना कहीं आपकी ये हैबिट आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन ओवर हो गया एंड उसके बाद जब आप वापस अपने जब घर आए, तो मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी सोची थी? तब तो मैं यही सोची थी कि मतलब एक दो पोर्शन जो था मेरा शायद वीक लग रहा था, तो वो पोर्शन मुझे करना था, एक बार फिर से वीडियो या फिर कुछ से मतलब देख लेना था। और जितना मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए उसको फिर से एक बार मुझे गो थ्रू करना था। और जितना हो सके मैं मतलब एग्जाम देने की कोशिश कर रही थी, एग्जाम एंड एमसीक्यूज, उसी टाइम पे वही मेरा फोकस था। तो प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस में थोड़ा गैप, राइट? अब ये जो मेंस का जो एग्जाम, उसके बीच में यू सेट कि जहां पे आपको लगा कि जो जो टॉपिक में मुझे लग रहा है मैं वीक हूँ, आपने दोबारा वीडियो देखा, एंड विच इज गुड, क्योंकि जब हमें प्रीलिम्स देते हैं हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ कहाँ और पढ़ना है, कहाँ कहाँ हमारे कंसेप्ट थोड़े अभी कच्चे हैं, हमें और स्ट्रॉन्ग करने हैं। वेरी वेल सेड। यहाँ पे जो भी आपको प्रीलिम्स, दिस इज द रीजन व्हाई प्रीलिम्स एक पूरा एक मिरर की तरह है, जो आपको ये बता देगा कि किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, इंपॉर्टेंस देना है। एंड अगेन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। एंड लास्ट में जो हमारे ये गोल्डन पॉइंट चांटिंग जो था, जिसमें नॉट सेट रिकॉल और ये हमारे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो वीडियो थी, क्या ये कहीं ना कहीं एक लास्ट मिनट रिविजन के लिए हेल्पफुल रहे? हाँ मैम, जितना मतलब गोल्डन पॉइंट चैंटिंग थे या फिर वो जो क्लासेस थे, मैंने लास्ट मिनट तक देखा था, सभी मैंने अटेंड किया। यस। शायद 1 या फिर 2 सेकंड में तक शायद था, मैंने उस टाइम पे भी किया था। सेकेंड मतलब सेकेंड डे वाज द लास्ट डे। हाँ, यस। तो मैंने अब उसमें जब भी मतलब मेंस मेंस के लिए आपको लगा कि नाउ मैंने जो है पूरी एक तो मुझे एक और चीज यहाँ पे जानना है कि हमारा 5 मई को एग्जाम था मेंस का, आपने लास्ट रिविजन कब तक करी? 4 मई तक, या लास्ट आपका आपने सोचा कि मैं अभी इतना ही पढ़ूंगी, इसके बाद अब नहीं पढ़ूंगी? रिविजन कब तक करी आपने? मतलब मेरा तो, हाँ, मैं 4th में तक ही करी थी, मैंने 4th में तक करी थी। और मेरा जो मतलब वो जो कॉपी था वही मैंने देखती गई एक बार करके। जो वो लास्ट में होता है ना, मतलब सबसे ज्यादा मैंने A4 का ही वो साइज वाला देख देख के गई थी, क्योंकि वो उसी में ही मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बिल्कुल वही। बिल्कुल। एंड जब फाइनली मेंस का एग्जाम देख लिया, कंप्लीट हो गया, तो एग्जाम देने के बाद आपका व्हाट वाज योर प्लान कि अब एग्जाम हो गया, क्या लग रहा था एग्जाम देने के बाद हो जाएगा? मतलब लग रहा था कि अच्छा गया है, पर पता नहीं था कि मतलब ये रैंक आएगा, ये पता नहीं था। पर एकदम ठीक ठाक ही गया था, तो मैं यू बता। हैव दिस फेथ कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, सिलेक्शन हो ग्रेट। जाएगा, कहीं ना कहीं पे हो जाएगा, ऐसा था। यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ईच वन ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू शुड हैव दिस कॉन्फिडेंस, और वो तभी आएगा when you will dedicatedly prepare, you have to give your time to your preparation, you have to be consistent.
बिकॉज एक भी दिन का गैप आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें पाइल अप कर देगा, स्ट्रेस आपका लेवल बढ़ा देगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट की, यू हैव टू बी थ्रू आउट योर जर्नी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हो इज नॉट इट इज समथिंग नॉट अबाउट दैट you'll count your hours कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैंने 12 घंटे पढ़ा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2 घंटे भी पढ़ो, बट इट शुड बी प्रोडक्टिव। जो भी आपने पढ़ा वो आपको समझ में आए। योर नोट्स आर वेरी वैल्यूएबल बिकॉज थ्रू आउट दिस सेशन अपराजिता ने यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटिफुली तरीके से मेंशन किया दैट अपराजिता ने जो नोट्स बनाए थे वो बिल्कुल एंड तक उनके काम आए मेंस में। आई एम श्योर, यस। तो यही यस मैम। यही है जो आपको भी करनी है, आपके लिए भी यही सेम एडवाइस, यही स्ट्रैटेजी यू कैन ऑल्सो implement all these point in your preparation journey so that you can also again I we all really wish कि नॉट सेट 7.0 में one day आप भी जो है यहाँ पे in place of अपराजिता की तरह इंटरव्यू दे रहे हैं and you are giving your tips and trick to the other aspirant. So again, thank you so much, Aprajita, for sharing this valuable point and the strategy. I'm sure जितने भी बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं वो अभी जो है उनको गाइडेंस मिला होगा कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एंड किस तरीके से और पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऐसा होता है ना, एज अ स्टूडेंट दे कनेक्ट मोर विद द स्टूडेंट एंड नाउ यू आर अ टॉपर, सो they'll ज्यादा वो उस पर फोकस कर पाएंगे कि हमें और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। So at last, Aprajita, here I really want you to, if you have, any important tips and tricks related to the upcoming NORCET preparation to our subscriber, if you want to share with them. हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि आप तो हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकती, तो कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब आप ये मतलब हर एक दिन में आपको एक रूटीन फिक्स कर लेना है कि मुझे इससे ये पढ़ना है, तो उसको खत्म करके ही सोना है रात को। और एक बार मतलब रात को सोने से पहले एक बार देख भी लेना है उसको। ऐसे करके ही चलना है, कंसिस्टेंसी तो रखना ही है, और बीच में छोड़ना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, बस यही बोलना चाहती हूँ। Great, Aprajita. So, dear students, remember you should have a plan. And that plan should be very well prepared in advance. उसी दिन नहीं बनाना है. So you should have a plan and you should stick to that plan. Make sure to complete that plan. राइट ये 3 चीजें आपको अपनी पूरी जर्नी में करनी है। प्लानिंग करनी है, डेली प्लानिंग करनी है, उसको जो भी प्लान किया है नोट डाउन समवेयर एंड देन ट्राई टू कंप्लीट ऑल दोज टास्क जो भी आपने अपनी प्लानिंग में डाले। And again, with this, I'm sure you all, have a very important pointers you have noted down during this session, जो आपकी इस preparation journey में आपको help करेगी. And once again, congratulations, Aprajita, for securing All India rank 43. Thank you so much, ma'am.